नमस्कार सभी मित्रों को। कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला की 79th वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ इसके पूर्व कि आज के आयोजन की पृष्ठभूमि को विस्तार से अपन डिस्कस करें, चर्चा करें और विशेषज्ञों को मैं आमंत्रित करूं। अनुरोध करूंगा मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उषा साहनी, जो पिछले कई वर्षों से साहित्य की विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लिख रही हैं, आपका एक कथा संग्रह और 3 काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। शेक्सपियर पर आपका शोध कार्य है और साहित्यिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से आपका विशेष जुड़ाव रहा है और मेरठ के कुछ संस्थान, वहाँ भी आप एक ट्रेनर के रूप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो अलग अलग पक्ष हैं उन पर अक्सर सहभागिता करती रहती हैं। मैं डॉक्टर उषा पांडे से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना और आप सभी के स्वागत में कुछ शब्द बोलते हुए आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस वेबिनार को शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। Good evening to one and all present here, connected through this virtual platform. We all are extremely fortunate that we have Professor Sanjeev Bhanawat, who is the pillar behind this entire webinar series. He took this initiative and we started this webinar on 2nd of October 2020. And by the grace of the Almighty and his specific efforts, this webinar is still continuing. And the biggest thing is that we have already done 78 webinars, and this is the 79th. Probably in my knowledge, there is no online webinar series or any such sort of meeting or any kind of activity which has been regular for such a long duration. And this webinar series we are conducting under the umbrella of Communication Today, a media bilingual journal, which has really helped n number of academicians, research scholars, and also the practitioners. They have put a lot of ideas, thoughts, articles, research papers in the black and white format, so that the people who are coming in the following generations, they can read that, they can get the information and the latest updates of the technology concerning media education. Plus to that, not only this media journal is being run under the able guidance of Professor Sanjeev Bhanawat, but also he has put a lot of efforts to bring out 10 special issues which are on proper specific topics that can definitely help those research scholars who are looking forward to build up their career in media education. So a big thanks to Professor Sanjeev Bhanawat for taking up such a huge responsibility on his shoulders and form a proper example, set a proper example in front of the media educators, those who can really learn a lot from this particular series, because on an approximate number, we might have, I guess, crossed 150 speakers from this platform.
those who have come and shared their insight and valuable knowledge in the present scenario. Plus to that, if we connect it with the past as well. So this media journal is really working way too ahead. Whatever we are seeing across, any new topic is coming, that is there. Lastly, we have also talked about ChatGPT, which is actually a bright and contemporary topic. This series, of course, Professor Bhanavat started. He gave an opportunity to me to join along with him and this team and his team. Plus to that, we have Prithvi also, who is the technical support of this webinar series. And because of the support, we are able to come up with all the certification work as well. So before starting this webinar, I would like to tell all the participants that we have 3 eminent speakers to provide the insights on this very topic of today's, that is World Press Freedom Day. And we have Professor Subhash Dhulia with us. We have Professor Shahid Rasool and also Dr. Vishal Vikram Singh. So I welcome all these 3. And before starting, I would like to give the platform to Professor Sanjeev Bhanavat so that we can get the idea, the introduction of this very theme that we will conduct today. Please, sir. Thank you so much. बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी, प्रोफेसर सुभाष धुलिया जी, प्रोफेसर शाहिद रसूल जी और डॉक्टर विशाल विक्रम जी, आप सभी के स्वागत अभिनंदन के साथ मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसा डॉक्टर उषा ने बताया, कम्युनिकेशन टुडे की ये 26 वर्षों की यात्रा और इस वेबिनार श्रृंखला जो हमने 2 अक्टूबर 2020 को शुरू की थी, इस मंच पर 150 नहीं, मुझे लगता है लगभग 300 के आसपास स्पीकर्स जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के हैं, टीचिंग से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, राजनीति से हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को हमने एक मंच पे लाके मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर एक विचार विमर्श की परंपरा शुरू की है। इस सारी चर्चा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इनको प्रसारित करेंगे ताकि जो मित्र इसके साथ जुड़ नहीं सके समय के कारण, चूंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी शुरू हो गई हैं, इसलिए हर एक के पास अपने समय की एक चुनौतियां होती हैं। उसके बावजूद अब तक जो डॉक्टर पृथ्वी ने जो मुझे सूचना भेजी है, 248 देश के अलग अलग अंचलों से, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को हम सर्टिफिकेट भेजेंगे और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है ये भी उनके साथ हम शेयर करेंगे ताकि इस चर्चा को हम आगे ले जा सके। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 30 वर्ष हो गए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करते हुए। यूनेस्को ने 1993 में आह्वान किया था। इसके पहले नामीबिया की राजधानी विंडहोक में जो एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जहां ये संकल्प लिया गया था अफ्रीकन पत्रकारों के उस संघर्ष को देखते हुए कि हम दुनिया में हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराएं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको एहसास कराएं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए, किसी भी देश के स्वतंत्र विकास के लिए एक स्वतंत्र प्रेस, एक उत्तरदायी प्रेस की अनिवार्यता को कहीं न कहीं स्वीकार किया जाए। यूनेस्को ने जो उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें 93 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाने लगा। 30 सालों के बाद भी अधिकांश देशों में बहुत सारी चुनौतियां हैं एक स्वतंत्र प्रेस को लेकर के। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, दुनिया भर में हर साल 2 साल के अंदर रिपोर्ट जारी होती हैं और हम देखते पढ़ते हैं किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय पत्रकारों के साथ शारीरिक रूप से उन पर आघात किया गया, उनकी हत्याएं भी की गई। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सत्ता को सच दिखाना बहुत आवश्यक है, स्वतंत्र प्रेस का अभिप्राय यही है कि हम आलोचना को स्वीकार करें, हम प्रश्न पूछने के लिए कहीं ना कहीं आजादी दें। तो ऐसे दौर में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है, पत्रकारिता में भी आजादी के बाद या पिछले कई दशकों से बहुत सारी जो विकृतियां हैं वो सामने आई हैं। तो ये किस तरह की जो स्थिति है, लेकिन सौभाग्य से हमारे देश की न्यायपालिका ने जब भी कभी इस तरह का संकट आया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एक तरह से समर्थन दिया है। चाहे वो देश की आजादी के बाद रोमेश थापर का मामला हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह का मामला हो, चाहे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लेकर के कुछ समाचार पत्रों की याचिकाओं का प्रश्न हो, या अभी जिस तरह से एक चैनल, मलयाली चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया है कि स्वतंत्र प्रेस
सबसे बड़ी आवश्यकता है और आम आदमी के लिए जो उसके मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षित करने की दिशा में वो एक न्यूनतम आवश्यकता है। संयोग से हमारे देश के संविधान में कहीं प्रेस की स्वतंत्रता का पृथक उल्लेख नहीं है। जो एक आम नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसी में ये सन्निहित है। 1948 में जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था उसके भी आर्टिकल 19 में ये बात की गई है कि संवाद स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का मूल अधिकार है। यूनेस्को ने ये जो दिन की घोषणा की थी तो प्रतिवर्ष वो एक थीम देते हैं इसकी, और इस थीम के आधार पर उनका ये कोशिश होती है कि देश भर में कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन होते रहें, सेमिनार होते रहें, विचार विमर्श होते रहें, ताकि एक जागरूकता है। विचारों का विमर्श कोई एक दिन का नहीं है, ये एक सतत प्रयत्न है। पिछले वर्षों में हमने पिछले 3 साल से लगातार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे आयोजन कर रहे हैं। पिछली बार जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल सेज, उसके पहले इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, उसके पहले जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, इस तरह के विषय उन्होंने दिए थे। अब की बार जो विषय उन्होंने दिया था, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज द ड्राइवर्स ऑफ फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। किस तरह से मूल अधिकारों के लिए की सुरक्षा के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। दुर्भाग्य से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट जारी हुई 3 मई 2022 को, उसमें भारत का स्थान 150वां है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। लोकसभा में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात को रेखांकित किया कि वो जो एनजीओ है, निजी एजेंसी है जो ये सर्वे करती है, इस सर्वे के जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक नहीं है। उनका जो सर्वे का साइज है वो बहुत कम है। तो भले ही भारत सरकार ने रिजेक्ट किया हो, लेकिन एक दुनिया के वैश्विक परिदृश्य में हमारे देश की कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थितियों को समझने के लिए वो एक आधार भूमि प्रदान करती है। तो पिछले 3, 4, 5 साल से इस देश में वो जो इंडेक्स है वो लगातार नीचे गिर रहा है। हम इस समय 150वें स्थान पर हैं। सबसे ऊपर नॉर्वे, प्रथम 3 देशों की हम बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे राष्ट्र हैं जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पत्रकारों के कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे से बहुत बेहतर हैं। हमारे से नीचे जो स्थान है वो पाकिस्तान का है, 157। उसके बाद बांग्लादेश 162, म्यांमार 176, चीन 175, श्रीलंका 146वें स्थान पर है, और इंग्लैंड जहां 24वें स्थान पर है, वहीं अमेरिका जैसा देश भी 42वें स्थान पर है। तो वैश्विक परिदृश्य में हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। सहयोग से आज हमारे साथ जो पैनल है इस विषय पर अपनी बातचीत करने के लिए, उनका मीडिया एकेडमिक्स और मीडिया में बहुत लंबा अनुभव रहा है। देश के अलग अलग अंचलों से वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर सुभाष धूलिया जी और प्रोफेसर शाहिद रसूल जी और विशाल विक्रम जी, में इन सबका विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा। सर्वप्रथम चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रोफेसर सुभाष धूलिया से। पिछले 4 दशकों से आप मीडिया एकेडमिक्स और मीडिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक शिक्षाविद के रूप में, शैक्षिक प्रशासक के रूप में, एक शोध अनुसंधानकर्ता के रूप में 40 सालों में आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। देश में अलग अलग संस्थानों में विभिन्न कैपेसिटी में काम करने का आपको मौका मिला है। उत्तराखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में, वहां आप कुलपति रहे और संयोग से उनके कार्यकाल में मुझे भी 2 बार वहां जाने का मौका मिला। आपने उस डिस्टेंट मोड से जो सारा जो टीचिंग का जो वहाँ के स्वरूप था उसको बहुत बेहतर बनाने में अपनी उस दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पहले या करियर की शुरुआत टीचिंग में जो आपने की वो आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की। वहाँ प्रोफेसर के रूप में और कोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इंस्टीट्यूट के 2 प्रमुख जर्नल, संचार माध्यम और कम्युनिकेटर के संपादक के रूप में आपने पूरे लेखकों की एक पूरी टीम तैयार की। और जैसा कि आप अधिकांश मित्र जो मीडिया से जुड़े हुए हैं जानते होंगे कि IIMC देश का एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज से लेकर के हमारे जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उन तक को भी ट्रेनिंग का काम करता है। तो कोर्स डायरेक्टर के रूप में भी सुभाष धूलिया जी ने ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। IIMC की जो पब्लिकेशन की सीरीज थी उसको भी आपने सुपरवाइज किया। उसके पहले इग्नू में भी आप रहे और इग्नू का जो मास कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया का डिपार्टमेंट है
उसको आपने लीडरशिप दी और वहाँ पीएचडी प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़े रहे और 10 से अधिक विद्यार्थियों का आपने शोध निर्देशन भी किया। इसके अलावा आपने जो मीडिया है उसमें बहुत काम किया, विशेषकर टाइम्स ग्रुप के साथ आपकी बहुत बड़ी पारी रही। आप संडे टाइम्स के एडिटर रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल राइटिंग से आप जुड़े रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो टीवी चैनल्स हैं टाइम्स नाउ और जो नवभारत टाइम्स जो चैनल हैं उनके साथ भी आप का जुड़ाव रहा। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था टाइम स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, उसमें भी आप अध्यापन से जुड़े रहे। और टाइम्स ग्रुप ने एक यूनिवर्सिटी डेवलप की है पिछले दिनों में, बेनेट यूनिवर्सिटी, मुझे भी एक बार मौका लगा वहां जाने का। उस यूनिवर्सिटी के साथ भी आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। इसके अलावा आप लखनऊ का एक पत्र है अमृत प्रभात डेली, उसके साथ भी आप चीफ सब एडिटर के रूप में उसके साथ जुड़े रहे। कहने का मतलब यह है कि आपके करियर के बहुत सारे पक्ष हैं, देश दुनिया की आपने बहुत यात्राएं की हैं। आपने वहाँ जैसे यूनेस्को है या यूनिसेफ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, इनके कंसल्टेंट के रूप में भी सहयोग किया है, एक तरह से गाइडेंस दी है। और जर्नलिज्म एजुकेशन को आपने एक नई दिशा देने का जो प्रयत्न है उसमें आपका सराहनीय योगदान रहा है। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज दूरदर्शन के लिए और अन्य एजेंसीज के लिए डायरेक्ट की हैं। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके लिए आपने त्रिपुरा और जो अलग अलग वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसके लिए आपने काफी काम किया है। फिल्म इंस्टीट्यूट जो हमारा है उसमें भी आपने ट्रेनिंग ली है। और वर्तमान में आप जो हिम्मती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है श्रीनगर गढ़वाल की, वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वहाँ भी आप प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी चुके हैं। और इस समय newswriters.com करके आपने एक नया प्रयोग शुरू किया है और उसके माध्यम से टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग तरह के कोर्सेज आपने शुरू किए हैं। तो अभी भी आप लगातार सक्रिय रह करके जो अपनी एकेडमिक इनिंग है उसको बड़े प्रभावी ढंग से आप संचालित कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट के साथ आपका बहुत सहयोग रहा और जब भी हमने आपको याद किया जयपुर में आपकी उपस्थिति रही और उस कोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी अकादमिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में आपका सतत सहयोग रहा। मैं प्रोफेसर सुभाष धूलिया जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आज के विषय के बारे में, उसके उस परिवेश के बारे में आपके जो पिछले 4 दशक के अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर सुभाष धूलिया जी। प्रोफेसर संजीव बनावत जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस वेबिनार में आने का मुझे मौका दिया। कम्युनिकेशन टुडे ने इस बीच पे काफी वेबिनार किए हैं। कम्युनिकेशन टुडे का जो है वो हमारे देश में जो मीडिया एजुकेशन को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब पूरी नई पीढ़ी है एकेडमिशियंस की, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने किया। हम उनके एकेडमिक राइटिंग्स का एक प्लेटफॉर्म रहा। और कम्युनिकेशन टुडे ने जो है जर्नलिज्म के फील्ड में नॉलेज क्रिएशन में बड़ी अहम भूमिका अदा की। तो प्रोफेसर संजीव बनावत जी जो है वो अभी भी बहुत सक्रिय रूप से वेबिनार के माध्यम से, कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमारे देश में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की शिक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज का टॉपिक काफी दिलचस्प है कि प्रेस फ्रीडम को लेकर के। तो पहले तो सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि प्रेस क्या है और फ्रीडम क्या है। तो जो हम लोग 70, 80, 90 के दशक में थे तो प्रेस एक वेल डिफाइंड एंटिटी थी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, उसकी फ्रीडम को लेकर हम लोग बात करते थे। उस वक्त हम लोग जर्नलिज्म में थे, एक्टिविस्ट भी थे, तो काफी प्रेस पे हमले होते थे। जब मैं यूपी में था तो हम लोग जिले जिलों में जाते थे जब पत्रकारों पे हमले होते थे। तो उस वक्त प्रेस फ्रीडम का कंसेप्ट काफी क्लियर था कि प्रेस पे कैसे हमले हो रहे हैं और खासतौर सरकार के द्वारा कैसे हमले हो रहे हैं। लेकिन आजकल जो मीडिया लैंडस्केप है उसमें इस तरह प्रेस को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कौन से प्रेस की हम बात कर रहे हैं? अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, जो बड़े अखबार, बड़े चैनल्स आते हैं, तो उनकी जो पूरी ऑनरशिप पैटर्न है, जो कॉर्पोरेट टेक ओवर हो गया है, तो वो पूरी तरह से एक व्यापार बन गया है जिसमें जो है वो फ्रीडम का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो एक तो प्रेस को कैसे डिफाइन करें कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, तमाम न्यूज पोर्टल्स भी हैं,
यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कई प्लेटफॉर्म्स भी हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहना चाहूँगा कि जो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनते हैं, ये इस सेंस में थोड़ा फॉल्टी होते हैं कि हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया को काफ़ी गवर्नमेंट ने भले कंट्रोल किया गया हो, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें डिसेंट जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त की जा रही है। तमाम न्यूज़ पोर्टल्स हैं, स्क्रॉल है, प्रिंट है, जो कि एक तरह से जो है एक डिसेंट के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो मीडिया लैंडस्केप है काफ़ी प्लूरल है, और उसमें स्वतंत्रता को एक एक अलग ढंग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया स्वतंत्र नहीं है हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। एक तो प्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का निश्चित रूप से जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, जो पूरी तरह है, उसका सारा कंटेंट जो है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री डिफाइन करती है। अगर जो है वो बम्बई में बारिश होगी अगर, तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बम्बई से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। लेकिन बिहार के किसी शहर में अगर बारिश से 100 लोग भी मर जाए तो उतनी बड़ी खबर नहीं है। तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया का जो कंटेंट है वो इन सब फैक्टर से गवर्न होता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ही वो मीडिया है कि जिसने कि अपने न्यूज ऑपरेशंस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में खर्चे बहुत कम किए हैं, क्योंकि टोटली एक प्रॉफिट मेकिंग जो है वेंचर बन गया है, जिसमें प्रॉफिट में ऑप्टिमाइजेशन ही उसका मेन मकसद रह गया है। तो इस प्रेस को हम अगर बात करते हैं अगर, तो इस प्रेस को हम लोग कैसे, प्रेस इसको कहें, फ्रीडम का इससे क्या संबंध है। दूसरी बात आती है कि फ्रीडम हम किसको कहेंगे। फ्रीडम का मतलब यह है कि देखिए, तारीफ करने की फ्रीडम तो सब जगह है। फ्रीडम तो नॉर्थ कोरिया में भी है। आप वहाँ के तानाशाह की जितनी तारीफ कर लीजिए, उसकी फ्रीडम आपको है। जब फ्रीडम की बात करते हैं तो हम डिसेंट की बात करते हैं, और फ्रीडम की बात करते हैं तो उनको क्वेश्चन करने की बात करते हैं, उनको ग्रिल करने की बात करते हैं, उनसे अनकंफर्टेबल एंड प्रेजेंट क्वेश्चंस करने की बात करते हैं। वो आर होल्डिंग लीवर्स ऑफ पावर, चाहे सरकार हो, चाहे कॉर्पोरेट पावर हो, चाहे दूसरे पावर सेक्टर्स हो। तो फ्रीडम का पहली परीक्षा ये है कि आप उन लोगों को कितना चैलेंज करते हैं जो लोग सत्ता में है। वो सत्ता सरकार की भी हो सकती है, कॉर्पोरेट्स की भी हो सकती है, दूसरी सत्ताएं भी हो सकती है। तो प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि आप खास तौर से गवर्नमेंट को लेके कितना क्रिटिकल हो सकते हैं। तो एक जो हमने कहा था कि डेमोक्रेसी में प्रेस एक का वॉचडॉग फंक्शन होता है कि वो सरकार पे नजर रखे और जनता के पक्ष में सरकार को बताए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। और दूसरा है कि जनता को सरकार के कार्यक्रमों नीतियों के बारे में जानकार बनाए। तो ये जो एक मीडिएशन की भूमिका जो मीडिया की रही है, इसमें बहुत बड़ा इरोजन हुआ है। अगर हम प्रेस के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 4 मेजर स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट है, एक कॉर्पोरेट्स है, एक जर्नलिस्ट है और एक पब्लिक है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो बनावत जी ने भी जो है जिस बात का जिक्र किया, हमारे यहाँ प्रेस को लेके काफी कंट्रोवर्सीज हुई, कई जर्नलिस्ट को जो है वो मतलब परेशान किया गया, मुकदमे किए गए, जेल में भेजा गया। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। आज हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि एक एटीट्यूड हो गया है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो जो मिडिल स्पेस होता था कि जिसमें कि जो मिडिल स्पेस हमेशा से रहा है, वो मिडिल स्पेस कहीं कहीं श्रिंक कर गया है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज आज का कि आप जो है वो आप फ्रीडम को कैसे एक्सरसाइज करें, जब आपका एक एटीट्यूड है कि या तो आप हमारे पक्ष में या आप हमारे खिलाफ हैं। तो ये एक प्रेस फ्रीडम के सबसे बड़ा चैलेंज है, जो ये एटीट्यूड पॉलिटिक्स में जो एटीट्यूड आया है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो मिडिल स्पेस का इरोजन मुझे लगता है कि एक प्रेस फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब बाकी कॉर्पोरेट पावर्स तो हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में मीडिया कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। अगर आप अमेरिका में कहें तो अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर के बड़ा ग्लोरिफिकेशन होता है कि हमारे यहाँ प्रेस फ्री है, लेकिन अमेरिकन प्रेस जो है वो पूरा कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। और अमेरिकन मीडिया काफी हद तक जो अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो वहाँ की आर्मेड इंडस्ट्री है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। तो अमेरिका में प्रेस फ्रीडम का कोई मीनिंग नहीं है। अमेरिका में कोई डिसेंट नाम की ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन अमेरिका में भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे देश में भी जो है इमर्ज कर रहे हैं,
जो काफी डिसेंट जिनमें होती है, लेकिन अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई डिसेंट नहीं है। अगर आज की तारीख पे आप देखें तो वहाँ का मीडिया अपने बेसिक कंटेंट में प्रेजेंटेशन बड़ी डिफरेंट हो, फॉक्स डिफरेंट है, सीएनएन डिफरेंट है, लेकिन बेसिक कंटेंट में कोई डिफरेंट नहीं। मतलब जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जो कंट्रोल है मीडिया पे वो बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसे देश में जिसको माना जाता है कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी का जो है वो सबसे बड़ा झंडा बरदार है। तो एक तो गवर्नमेंट का एक रोल आता है कि गवर्नमेंट क्या रोल अदा करती है, और कॉर्पोरेट ऑनरशिप जो है वो किस तरह के प्रेस को उसने इवॉल्व किया है और कैसे जो है वो प्रेस फ्रीडम कंट्रोल करती है। एक बार किसी ने कहा था कि प्रेस फ्रीडम उनकी होती है जो प्रेस को ओन करते हैं। ये फ्रीडम पत्रकार की नहीं है, ये फ्रीडम जनता की नहीं है, बल्कि फ्रीडम उनकी है जो उसके मालिक है। तो एक तो आता है, तीसरा आता है कि जर्नलिस्ट पे हमको इसलिए फोकस करना चाहिए कि हम उस कम्युनिटी से आते हैं। आज हमारा जर्नलिस्ट करता क्या है? हमारा जर्नलिस्ट ऐसा कौन सा जर्नलिज्म कर रहा है जो बहुत क्रिटिकल जर्नलिज्म है? आज सुबह मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में था, तो वहां भी मैंने एक बात की कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे तो वहाँ एक छोटा सा स्पेस होता है आपके लिए कुछ करने के लिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस बड़ा होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस बहुत छोटा होगा। उस स्पेस को आप कितना इस्तेमाल करते हैं? आप हर चीज जो है वो पॉलिटिकली आप इवेलुएट नहीं कर सकते कि आपको प्रो गवर्नमेंट होना है कि एंटी गवर्नमेंट होना है, आपको प्रो मोदी होना है कि एंटी गवर्नमेंट होना है। तमाम ऐसे इश्यूज देश के सामने हैं जिसका एज सच पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि आजादी से लेकर अब तक देश में जो है कम से कम मेरा ख्याल है 150 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और आपको याद होगा कि एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बम्बई में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका सिर्फ 8% ही ग्रास रूट लेवल तक गया है जो फंडिंग डेवलप प्रोजेक्ट्स ने गवर्नमेंट ने की। अब यह है कि इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में जितना करप्शन रहा, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, दलाल सारा पैसा खा गए और ग्रास रूट पे पैसा पहुंचा ही नहीं, इसकी रिपोर्टिंग में पत्रकार को कौन रोकता है? तो इस स्पेस का पत्रकार कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी है। मतलब यह कि चाहे कैसा भी चैनल क्यों ना हो, मैं मानता हूँ कुछ चैनल में छोटी सी जगह आपके लिए एक अच्छा जर्नलिज्म करने की होती है। तो पत्रकार जो है वो हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी झांकना चाहिए कि वो उस स्पेस का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर चीज के लिए सरकार को या कॉर्पोरेट पावर को दोषी नहीं दे सकते। कितनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, ये मान लिया जाए कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग में, न्यूज गैदरिंग में, इन्वेस्टमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। अब मुश्किल से ऐसा होता है कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको एक जर्नलिस्ट को 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा तभी वो एक रिपोर्ट करेगा। तो इतना पैसा उतना उनको दिया नहीं जाता है। टेलीविजन चैनल्स में एक रिपोर्टर से उम्मीद की जाती है कि एक दिन में वो 4-4, 5-5 स्टोरीज फाइल करे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि इमर्ज कर रहा है कि मीडिया, आज का मीडिया का डेमोक्रेसी में रोल क्या है। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि वो लोगों को जो है वो ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करे। उसका रोल ये है कि एक इन्फॉर्म सिटीजनरी जो है वो डेवलप करे, एक एम्पावर्ड सिटीजन डेवलप करे, जो कि डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। अब इस इन्फॉर्म सिटीजनरी को क्रिएट करने में मीडिया का क्या रोल है? आज का मीडिया क्या रोल कर रहा है? आज हमारे लोग इन्फॉर्म्ड है या मिस इन्फॉर्म्ड है? एम्पावर्ड मीडिया उनको कर रहा है कि डिसएम्पावर्ड कर रहा है, जिस तरह के कंटेंट जो है वो दिया जाता है। तो ये तमाम इश्यूज जो है आज हमको जो है वो देखने पड़ेंगे। प्रेस फ्रीडम जो है वो अक्रॉस द ग्लोब जो है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अब आप जो है वो यूक्रेन वॉर को आप देख लीजिए। मैं यूक्रेन वॉर को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। तमाम न्यूज पोर्टल से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, टीवी चैनल्स को लेके सबको देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ यूक्रेन में हो क्या रहा है। लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जो कि ऑन द फेस ऑफ इट अनबिलीवेबल होती है। तो खबर आएगी बड़े बड़े चैनल्स पे, BBC, CNN जैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन आज ब्रिटेन प्रोपेगेंडा में जो है जुड़े हुए। टाइम की मैसिव बम्बार्डमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, किलिंग 2 पर्सन्स, इंजरिंग 2। मैसिव बम्बार्डमेंट अगर रेजिडेंशियल एरिया पे हो रहा है तो 2 ही लोग मरते हैं उसमें, और कभी भी आपकी कैजुअलिटीज की फिगर नहीं दी जा रही है। आज हम बिल्कुल नहीं जानते कि यूक्रेन में क्या हो रहा है।
मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में आज जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा यूक्रेन वार को लेके। और सारे डिप्यूटेड चैनल्स इस बार टोटल ग्लोबल मीडिया का पूरा पोलराइजेशन है। बिल्कुल जो है वेस्टर्न मीडिया, चाहे CNN हो, चाहे BBC हो, चाहे फॉक्स हो, सब एक ही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो जो है वो दूसरे तरह का एक पक्ष, एक तरफ खबरें मिलती है। दो कैंप से दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो इंफॉर्मेशन टोटली प्रोपेगेंडा है और आम जनता जानती नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। आज हमको सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने आप से कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट पावर हो, चाहे पब्लिक हो, कि हमारी पब्लिक कितनी इन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म्ड पब्लिक का होना बहुत जरूरी है एक देश के विकास के लिए, एक समाज के विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक उत्थान के लिए। तो ये इश्यूज हैं जिन पे हमको सोचना चाहिए। तो मैं अपनी बात यही खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरा एक और एंगेजमेंट और भी है, थोड़ा मैं आपको सुनना चाहूंगा। धन्यवाद भानावत जी, और आप बहुत अच्छा जो है वो आयोजन कर रहे हैं, और आपका योगदान जो है वो मीडिया एजुकेशन के हमारे देश में बहुत सराहनीय है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और वास्तव में आपने जो एक वैश्विक परिदृश्य में पत्रकार के सामने उन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए स्वयं की संकल्प शक्ति और जिजीविषा से दी वो काम करे, और पक्ष विपक्ष के जो खेमे बन गए हैं, विचार की बजाय तथ्य केंद्रित पत्रकारिता करने की कुछ आवश्यकता आपने महसूस की। और ये सही है कि व्यावसायीकरण ने पत्रकारिता की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। कई बार तो मुझे लगता है शायद हमने ये स्वतंत्रता गिरवी रख दी है। आर्टिकल 19(1)A ने भले ही बात की हो, लेकिन अखबारों का प्रथम पृष्ठ उन व्यावसायिक घरानों ने खरीद लिया है, जहां प्रथम पृष्ठ को समाचारों की दृष्टि से कितना पवित्र माना जाता था। हमने जब पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की और पढ़ाना शुरू किया, वहां हम जब बात करते थे तो प्रथम पृष्ठ की पवित्रता से बात करते थे। आज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पृष्ठ जो हैं, यदि मुझे सही याद है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही पहली बार फेयर लवली का विज्ञापन छपा था फ्रंट पेज पे। तब पूरे देश में एक हंगामा मच गया था कि समाचार पत्र की जो पवित्रता है वो समाप्त हो गई प्रथम पृष्ठ की। उसके बाद तो कौन सा ऐसा अखबार है जो उससे आज अछूता है। इसी प्रकार रेडियो, टीवी, ये जो चैनल्स हैं, इनका समय खरीद लिया है इन कॉरपोरेट हाउस ने, और हम अभिशप्त हैं। ये जो कुछ दिखाना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे, प्रसारित करना चाहेंगे, वही देखने सुनने के लिए। ऐसे दौर में जो आपने संकेत किया कि जो अल्टरनेटिव मीडिया है या जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहां यदि क्रिएटिव लोग जुड़ेंगे तो शायद उस अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की जो मूल भावना है उसे कहीं समझकर, लेकिन वहां भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के 66 वाला जो सेक्शन है उसको अब रद्द कर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि इन सोशल मीडिया पर भी जो लोग लिख रहे हैं वो किस तरह से कानूनी शिकंजे में, या जो वहां का प्रशासन है, अभी शायद आगरा के गौरव अग्रवाल का कहीं मैं पढ़ रहा था, किस तरह से उसे थाने में बंद कर दिया, और जो वीडियो ट्विटर वगैरह पे शेयर हुआ था उसमें वो बुरी तरह से कांप रहा था, इस तरह की थ्रेटनिंग दी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि वहां भी जिस तरह से ट्रेल किया जा रहा है, जिस तरह से साइबर बुलिंग हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जन जागरण के माध्यम से ये सही है कि ये जो डिजिटल मीडियम है, शायद ये इन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में कहीं कहीं अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है जो आपने बात कही कि खबरों की जो पवित्रता है, तथ्यात्मकता है, या सही खबर देने की बात है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन आइए सुनते हैं हम अब प्रोफेसर शाहिद रसूल जी को। कश्मीर को मीडिया को लेकर के मुझे लगता है कि देश के अन्य भागों में हमेशा से कहीं ना कहीं एक उत्कंठा या जानने की जिज्ञासा रही है। तो मुझे लगा कि इस फोरम पे हम इस बार शाहिद जी को सुने। शाहिद जी का भी मेरे विभाग के साथ जुड़ाव रहा है और हमारे एक दो आयोजनों में वो सम्मिलित हुए हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित समारोह या कार्यक्रम जो अकादमिक थे उनमें मेरी इनसे अक्सर मुलाकात होती रही है। डॉक्टर शाहिद रसूल, यूँ तो देश की अनेक जो हायर लेवल की एजेंसीज हैं, UGC और जो हमारे ये जो CEC वगैरह हैं, इन सब के साथ आप जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहाँ पर डीन हैं स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज और एकेडमिक अफेयर्स और पब्लिक रिलेशंस सेंटर के। आप चीफ
कोऑर्डिनेटर भी हैं जो स्कोप प्रोजेक्ट ऑफ विज्ञान प्रसार DST का है, कश्मीर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। आपका अकादमिक करियर भी बहुत ब्राइट रहा है। दुनिया के अनेक हिस्सों में आपको यात्राएं करने का मौका मिला है, और जो अभी प्रोफेसर धूलिया जी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जो चुनौतियां उस प्रेस के सामने हैं, तो चूंकि शाहिद रसूल जी ने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इस प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे को आपने देखा, समझा है। आप सरकैज़ुस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में फुल ब्राइट फेलो के रूप में भी रिसर्च कर चुके हैं। CEMCA सिमका के आप कॉमनवेल्थ लर्निंग का जो सेंटर है उसके भी आप डायरेक्टर रहे कनाडा में। आप EMRC जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की है उसके डायरेक्टर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मीडिया एडवाइजर आप हैं रहे। इसी तरह से वहाँ का जो मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर है उसके भी आप हेड रहे। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस, टीवी, रेडियो और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन रहे। आपने सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी अमेरिका से MS किया मास कम्युनिकेशन में, और PhD आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। लगभग 3 दशक से अधिक का अनुभव आपका पत्रकारिता का, रिसर्च का, प्रोडक्शन का और एजुकेशनल फिल्म्स को डायरेक्ट करने का रहा है। और आपने जो हमारे MOOC कोर्सेज हैं जो UGC ने लॉन्च किए हैं और मल्टीमीडिया के जो कोर्सेज हैं उसमें कंटेंट तैयार करने की दिशा में आपका विशेष योगदान रहा है। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, पॉलिसी रिपोर्ट्स इत्यादि तैयार की है। एजुकेशनल टेलीविजन इन इंडिया आपकी एक चर्चित पुस्तक है। आपने 300 से अधिक एजुकेशनल टीवी फिल्म्स जो हैं वो डायरेक्ट की हैं, और कई फिल्म्स को आपने उनके अवार्ड मिल चुका है। NAC की टीम से भी आप जुड़े रहे। धूलिया जी भी NAC के आप तो चेयरमैन भी रहे कई कमेटीज के। तो आपका अनुभव देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट करने का, वहाँ के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को देखने का आपका अनुभव रहा है। आप जो हमारी MHRD है उसकी कई कमेटीज के साथ आप जुड़े रहे हैं, और जो हमारे स्वयं और स्वयं प्रभा के जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी आपने कंटेंट तैयार किया है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, CEC, UGC इनकी अनेक कमेटियों में हैं, और एक तरह से मीडिया शिक्षा को स्ट्रेंथन करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। NCERT के साथ आप जुड़े हुए हैं। अनेक जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड में एडिटर के रूप में आपने काम किया है, और USA, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया आदि अनेक देशों की आपने यात्राएं की हैं। तो आपका एक व्यापक अनुभव, मैंने कहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मीडिया परिदृश्य को आज के दौर में आप किस रूप में देख रहे हैं, अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। भाषा का बंधन नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप अपनी बात कह सकते हैं। आदरणीय प्रोफेसर शाहिद रसूल जी। सर माइक आपका अनम्यूट, माइक। Thank you very much, Professor Sanjeev Banaras ji. You gave a very long introduction of mine. I consider myself a humble student of the communication, but you made my work easier because I was going to start the disclaimer that my presentation and my thoughts do not reflect, what is happening in my place in Kashmir or what's happening in my country, India. But as you said rightly that I had the exposure of traveling across the world, and जैसे धुलिया जी ने भी कहा है कि भाई कि प्रेस की जो पोजीशन है इस वक्त ये पूरे दुनिया में, पूरी ग्लोब में है, थोड़ी सी चिंताजनक है. So we need to think about the ways and the means to protect our freedom of press, as well as the epithet that we have earned, that we are the fourth important pillar of the democracy. So I will begin my speech thought. I begin with the thought of the father of the nation, Mahatma Gandhi, who once said, freedom of the press is a precious privilege that no country can forego. That's what our father of the nation said. And taking that further, Walter Lippmann, the 20th century American columnist, wrote, a free press is not a privilege, but an organic necessity in a greater society. I, for one, among those people who always believed and seen media as a positive contributor that builds trust among the people and the stakeholders. The tremendous contribution of media in shaping the growth and development of the country cannot be overemphasized. This engagement of Indian media in particular, especially the press,
began much before the independence and has come a long way. As an agent of change for good, the press, while making people aware about their rights and duties, also rose their passion for the freedom and later for nation building. With constitutional guarantees for freedom of press and freedom of expression, of course, not in a very categorical manner, but put in the constitution as the, right to freedom and right to expression, the press more or less exercised this freedom with extreme care and sensitivity. While it served as a watchdog, keeping checks and balances and highlighting issues faced by the society and the nation, it did it purely with a missionary zeal, which of course is missing, now. Serving the nation with no commercial motives or self-interests. Profession at that particular time was considered divine and the practice sacred. This is actually what earned it the cherished epithet of being the fourth pillar of democracy. Referring to this fourth pillar, again, Mahatma Gandhi said, the press is called the fourth estate. It is definitely a power, but to misuse that power is criminal. And the American broadcaster Walter Cronkite says, freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy. From our first Prime Minister, Shri Pandit Jawaharlal Nehru, to the present Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, all our Prime Ministers and the Chief Executives have always stressed the importance of freedom of press for our democratic country. In his speech at News Editors Conference in 1950, Pandit Jawaharlal Nehru said, and I quote, "The press is one of the vital organs of modern life, especially in democracy." He further said, in addition to the tremendous powers that press has, it also has tremendous responsibilities. And our present Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in his speech on World Press Day in 2017 said, and I quote, "Free and vibrant press is the soul of a democracy," unquote. But now, when this freedom is misused for personal gains, it becomes the biggest shortcoming of a democratic society and a real threat to its very existence. Today, we are living in interesting times. We are witnessing the convergence of media, print, electronic, conventional, and even the traditional media, influenced or impacted by the social media, resulting in a new media ecosystem. But despite challenges from social media, conventional press, television, and radio is still central to all discussions and is ubiquitous in every household. The digital penetration and social media has only made it more powerful in terms of reach and its speed, influencing public opinion and performance. Again, the basics of journalism, the journalistic practices and ethics remain the same. Only the mode of delivery has changed. Has been when Silverman aptly said, the promise of technology is that it extends your reach. With greater reach and speed, the responsibility of the press has also increased because the margin of error now is too small. A small typo even can have a devastating impact, as it will spread like a wildfire, creating confusion and total chaos in the society, resulting in panic and at times in rioting. So we need extreme caution. The freedom of press now also does not refer only to print media, as Professor Subhash Dhulia ji also was saying, that we have to now see what is press. So the press freedom does not refer only to print media, but the entire gamut of journalism being practiced through print, television, radio, social media, even including the blogs and news portals, including the citizen journalists and newly born artificial news readers who, as on now, are controlled by the human beings, but they may also get out of hand. But then today, when we read and importantly watch television news channels, it's at times heartening the way media operates, dishing out inflammatory materials and sensationalizing simple events, catering to the tastes of 10% elite population while ignoring the real issues facing 90% common masses. It's disappointing. Media is in a mad race and greed for materialistic power. If the trend continues, the media will lose its impact, trust, and respect of masses, and it's increasing with every passing day. The very idea is devastating. For increasing TRPs or the circulation, media organizations have invented the mantra,
of sex, sleaze, political flogging to draw the eyeballs. While 80% of the population lives in villages and is predominantly agricultural based, hardly 5% of the space is devoted to the issues concerning them. The poor faces have vanished from the primetime television and the front pages of the newspapers. They are seen only at times of calamities. The space devoted to developmental stories in the newspapers or on news channels is negligible compared to space offered to the entertainment. Not only that, even the resources allocated to such stories are scanty. The real investigative reporting is dead. Media is facing a serious challenge of increasing corporatization. In fact, this was also an idea which Subhash Dhulia ji in detail discussed. This corporatization of media has resulted in concept of what's called now the media economy. The concept that did not exist in India before 1990, but now it's integral to market economy, with shares of major media organizations attracting huge response. Earlier media, especially the print media, used to have what we used to call editorial policy, which was shaped by morals, values, ethics, social concerns, and was driven with a missionary zeal, with duty to citizens of the nation as supreme and sacred. Now, media have corporate policies, which are governed by profits and ad revenues. The ugly trend of paid news, advertorials, and embedded journalists is a cause of serious concern. The corporatization of media is leading to media consolidation, with chosen few rich business houses owning major shares in most of the well-known national media organizations and deciding what we shall read, what we shall see, or what we shall hear. That's what is happening at the international level also, like Professor Dhulia ji was referring to the Ukraine war. Earlier, the similar thing happened with the Iraq war. We never knew what was happening in Iraq. And we were made to believe that there are weapons of mass destruction, and ultimately they found it in the teeth of Saddam Hussein. The ever-increasing corporatization of media is also resulting in deep polarization, trivialization, and elitization. Our politicians, industrialists, corporates, and bureaucrats have befriended media to their advantage, influencing all the spheres of media operations, from news gathering, packaging, to dissemination. They are serving as real gatekeepers, filtering the media coverage that suits their interests, deciding what we must listen, think, and discuss. The politicization of media is leading to radicalization, which in turn results in polarization of media and society. In the contemporary times, we are faced with a tremendous challenge as the news media, especially the television news channels, are increasingly setting the agenda for the nation with their own frame of references and business interests. This framing effect, what Chomsky also calls manufacturing the consent, is more used for personal interests of few rather than the development and growth of the nation. The primetime debates on television have been reduced to boxing rings. I call them boxing rings now, as the anchors deliver sermons to the nation for their own TRPs. These primetime media trials are dominated by 20 well-known so-called elite faces and 5 armchair anchors, demonstrating their knowledge and wisdom on all the subjects across major national television news channels. Moving from channel to channel, they yell their thought, creating war-like situation on the screens. The same is happening with packaging of news in print media, with few columnists making us believe that their masters desire independent and investigative reporting and analysis hard to come by. Rest, common people do not matter. Their voices do not matter. Their ideas have no takers. And all their problems have a top-down solution from armchair experts and studio anchors. Media, unfortunately, is becoming largely elite-oriented. As Harsh Mandar, a noted writer in his book, Looking Away, says, the same expulsion of the poor occurs also in popular television soap operas, in which the leading ladies wear silk saris and gold jewelries even to bed, unquote. In this battle of tastes where the rich rule, the poor stand already expelled. As I said, they have vanished from primetime television, radio, and the front page of newspapers. This is what we call elitization of media. P. Sainath once remarked,
that 512 accredited journalists covered a fashion show in which models displayed cotton garments. But only a couple of journalists covered suicides of farmers who grew this cotton. We constantly observe how media is interested in trivial issues rather than getting engaged in serious issues that concern the society. Again, when we talk about freedom of press, whose freedom are we talking about? Is it the freedom of a reporter? Is it the freedom of an editor, a chief editor, or the owner? As per reports, only 20% of what is reported is published, depending on the interests of the corporate gatekeeper. The time is ripe. Media has to introspect for their own good to stay as an important fourth pillar of democracy. But according to Sidney Schanberg, when it comes to looking at itself, society's watchdog is a lamb. And according to Franklin Roosevelt, freedom of press is essential to the preservation of a democracy. But there is a difference between freedom and license. According to him, journalists who tell downright lies in order to advance their own agendas do more to discredit the press than all the censors in the world. Having said that, I wish to reiterate once again, media has played and is still playing a crucial role in development of the society, checking undesired social evils and practices like corruption and superstition, but they definitely can do better, especially in the field of communication for inclusive and sustainable development. For this, media has to move from simply being an informer or a casual watchdog to media as an enabler, increasing public awareness and access to information and issues concerning development of the nation. Media can effectively make people part of participatory inclusive development of the nation and the nation, whereas our Nobel laureate Rabindranath Tagore in Gitanjali says, where the mind is without fear and the head is held high, while the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth into that heaven of freedom, my father, let my country awake. In India, freedom of press assumes a much higher significance because we are a unique and highly diverse, multicultural, multilingual, and multi-religious country, which indeed is our strength and needs to be preserved and protected. As our Honorable Prime Minister says and dreams, Sabka Saath and Sabka Vikas, we the media professionals have a duty to be partners in realizing that dream with absolute fairness to one and all. When the history of the success of this great nation is written, we must ensure we also find a mention for our contribution in creating a vibrant democratic nation with so much of diversity. And that is the role we as media educators and the media professionals have to do. I will conclude with the words of Voltaire, who said, and it makes a great sense on today, on this day, which is very dear to all of us and is being celebrated all across the world. And Voltaire says, and I quote, "I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it." With these few words and thoughts, I wish to thank you all for listening to me and thank organizers, especially Professor Sanjeev Banawat ji and my fellow panelists for being around. And I must also place on record the contribution that Professor Sanjeev Banawat ji is making in getting people from different thoughts together and contributing to the growth and development of the media education as well as the media as a profession. That is remarkable, and it will go a long way in creating an ecosystem for our country to become really a vibrant society where everybody has equal space in media, and the media retains that epithet of being called the fourth pillar of democracy. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद रसूल भाई, आपकी इन शुभकामनाओं के लिए भी मैं आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अपेक्षाएं आपने हमसे की हैं, हम उन कसौटियों पर, आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे
आपने जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम और प्रेस की भूमिका को यहाँ विश्लेषित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती है कि स्वतंत्रता किसकी, मालिकों की या पत्रकारों की। ये सही है कि जिन मुद्दों पर प्रेस को काम करना चाहिए वो कहीं न कहीं उपेक्षित है। शहरीकरण या अर्बनाइजेशन की मार्ग में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से व्यावसायिक घरानों ने विचार की पत्रकारिता का हनन किया है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। संपादकीय संस्था के क्षरण की ओर जो आपने संकेत किया, जिस तरह से अवमूल्यन हो रहा है, मुझे बाबूराव विष्णु पराडकर के वो शब्द याद आ रहे हैं जब उन्होंने कहा था, लगभग 8 दशक पहले उस युग दृष्टा पत्रकार ने इस बात को महसूस कर लिया था कि आने वाले दौर में अखबार रंगीन होंगे, मुद्रण बहुत सुंदर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो आत्मा शायद नहीं होगी। तो शायद उसी की चिंता आपके पूरे उस वक्तव्य में झलक रही थी कि टीआरपी और प्रसार संख्या की दौड़ में, जिस तरह से भौतिकता की अंती दौड़ में ये पूरा का पूरा मीडिया आगे बढ़ रहा है, उसमें शायद आम आदमी के साथ वो जो उसकी एक पीड़ा और व्यथा है या सम्मान जो होना चाहिए, वो उसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। पंडित नेहरू को आपने कोट किया, मुझे भी याद आया पंडित नेहरू ने कहा था स्वतंत्र प्रेस की महत्ता को रेखांकित करते हुए कि मैं स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खतरों के बावजूद एक स्वतंत्र समाचार पत्र वाली व्यवस्था को पसंद करूंगा। अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह कहा था, यदि मेरे पास 2 विकल्प हैं, न्यूज़पेपर विदाउट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर, तो मैं न्यूज़पेपर विदाउट गवर्नमेंट वाली शासन जो है उसको चुनना चाहूंगा। ये सही है। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि हमारे इस पूरी जो इतिहास है उसमें जितने भी ये महान चिंतक हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता को महसूस किया है। आज के दौर में पंडित नेहरू से लेकर के मोदी जी तक उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को कहीं स्वीकार किया है, उसकी मूल आत्मा को स्वीकार किया है। लेकिन चुनौती यही है कि व्यावहारिक रूप से क्या हम उस आलोचना को, उन प्रश्नों को सुनने के लिए तैयार हैं, और कहीं उस पत्रकार को जो उसमें काम कर रहा है उसको वो स्वतंत्रता देने के लिए कहीं हम मानसिक रूप से तैयार हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच चलिए, अभी हम सुन रहे थे उन मीडिया विशेषज्ञों को जिन्होंने लंबे समय तक मीडिया शिक्षण और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया, अपना योगदान दिया और एक लीडरशिप दी पूरे देश को। आइए, एक साहित्य का युवा विद्यार्थी, क्योंकि आने वाला समय इनका है, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह। वस्तुतः जब मेरे दिमाग में इसकी एक परिकल्पना जगी तो मुझे लगा कि कहीं एक साहित्य के विद्यार्थी को बुलाया जाए। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उसमें मैं अक्सर विशाल विक्रम जी की टिप्पणियां पढ़ता रहा हूं, तो मुझे लगा कि वो 2-4 लाइन की टिप्पणी के बजाय हम उनको पूरा सुने, किस तरह से वो इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, क्योंकि साहित्य और पत्रकारिता का बहुत गहरा संबंध रहा है। आजादी के पहले की जो पत्रकारिता थी, जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, वो उन्हीं साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से लड़ी गई। तो साहित्य ने जहां पत्रकारिता को आगे बढ़ाया, वहीं पत्रकारिता ने भी साहित्य को उसकी विभिन्न विधाओं को आगे बढ़ाने में, उनको एक सशक्त बनाने में कहीं अपना योगदान दिया है। उस पर कहीं फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह एक युवा शिक्षक हैं जिनकी लगभग 1-1.5 दशक का अध्यापन का अनुभव। बनावट जी, मुझे इजाजत दीजिएगा। हाँ सर, आपका एक दूसरा कार्यक्रम है, तो कोई बात नहीं, फिर हाँ अगले किसी मंच पे और इस चर्चा को शुरू करके मैं कोशिश करता हूँ दोबारा ज्वाइन करने की। जी 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 सर, जैसा आपको समय मिले। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विशाल विक्रम जी ने अपनी यूं मूलतः पढ़ाई तो जौनपुर से की स्कूलिंग, और हायर स्टडीज आपने बनारस से किया, काशू हिंद विश्वविद्यालय, जिसकी स्वयं की अपनी एक समृद्ध परंपरा। मदन मोहन मालवीय जी के उस योगदान को हम सब जानते हैं। तो बीएचयू के एक विद्यार्थी आप रहे, वहीं से आपने पीएचडी किया, और विद्यार्थी जीवन से ही आप अनेक छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे। मूलतः वामपंथी जो देश में आंदोलन था उसके साथ आप जुड़े रहे, और लेकिन उसके साथ साथ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ भी आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे। अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं, परिचय, साखी, नवतुरिया, शीतलवाणी, परिकथा, समकालीन सोच, बनास जन इत्यादि अनेक पत्रिकाओं में आप साहित्य और मीडिया विमर्श के विभिन्न पक्षों से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे।
परिकथा पत्रिका ने 2011 में एक युवा आलोचक विशेषांक निकाला, उसमें युवा आलोचक के रूप में भी आपको एक तरह से उन्होंने स्वीकृत किया या मान्यता प्रदान की या पुरस्कृत किया। तो इस प्रकार साहित्य और सांस्कृतिक विषयों पर आप निरंतर लिख रहे हैं और जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आप सक्रिय हैं। तो एक युवा शिक्षक, एक युवा संघर्षशील छात्र नेता किस रूप में आज के सारे परिदृश्य को देख रहा है, उस पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा भाई विशाल विक्रम जी से कि वे इस अवसर पर अपने उस सोच के साथ हमें कहीं और अधिक जागरूक करें या एक दिशा दें ताकि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर विशाल विक्रम से। बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुभाष धूलिया जो किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से अभी उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं, वो प्रोफेसर शाहिद रसूल, प्रोफेसर संजीव भानावत, डॉक्टर उषा साहनी और साथियों, दोस्तों, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मेरे साथ इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि मुझे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर प्रेस पर बात करनी है और मुझसे पहले दो अत्यंत आदरणीय और दिग्गज लोगों ने बात कर ली है। तो मेरे लिए बात करना एक कठिन काम है इस परिस्थिति में। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो विचार करता हूं मैं, एक मीडिया से बाहर के व्यक्ति के बतौर मीडिया के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए जो भी सूत्रीकरण हुआ है मेरे मन में, वो आपसे साझा करूंगा मैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि आज का जो समय है वो समय कैसा है, कौन उस समय को उसकी हम पहचान कैसे करें। क्योंकि हम सब हमेशा से ये पढ़ते आए हैं और जानते आए हैं कि सही पहचान, समय की सही पहचान करना समस्याओं की सही पहचान की पहली कड़ी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि 1990 के बाद से ही भारत के परिवेश में, भारत की परिस्थिति में एक तरह के फांसीवादी उभार का तेज होना दिखाई पड़ता है। लेकिन 1990 के ठीक बाद का जो फांसीवाद है दोस्तों, उसमें सांप्रदायिकता की एक भूमिका है और 90 से थोड़ा पहले या 90 के बाद तक सांप्रदायिक ताकतें और पूंजीवादी ताकतें एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग नहीं करने वाली स्थिति में, एक दूसरे के साथ भाईचारा तो है, लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद इस सदी में हिंदुस्तान के खास संदर्भ में आप देखेंगे तो सांप्रदायिक ताकतें और पूंजीवादी ताकतें दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर दिया है। और यह गठजोड़ आज जब 2023 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि यह किस तरीके से एक फांसीवादी व्यवस्था के बन जाने, बनाए रखने और उसे हमेशा के लिए लागू रखने की कोशिशों में तब्दील हो गई। यह जो सांप्रदायिकता और पूंजीवाद के गठजोड़ से बना हुआ फांसीवादी समय है दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ा खतरा इस गठजोड़ के लिए है वो लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र का संबंध हमारी स्वतंत्रता से भी है। तब जैसे ही हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और लोकतंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इन सब का आधार लोकतंत्र, और लोकतंत्र केंद्रित होता है संविधान पर, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करना। इसका संबंध है हमारे प्रेस की स्वतंत्रता से। आज के दौर में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा, चाहे ये दुख के साथ ही, कि आज संवैधानिक लोकतंत्र बेहद 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 कमजोर हो रहा है। और वे संस्थाएं जिनके ऊपर ऐतिहासिक जिम्मा होता है लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने और लोकतंत्र का प्रसार करने और लोगों तक लोकतंत्र को पहुंचाने और लोकतांत्रिक चेतना तक लोगों को कन्विंस करने के लिए, वे सारी संस्थाएं
उन्हीं लोगों के द्वारा कमजोर की जा रही हैं जिन्हें उन संस्थाओं को बचाए और बनाए रखने का जिम्मा मिला। हमारी चुनी हुई सरकारें भी उस तरीके से मुस्तैदी नहीं दिखा रही हैं जैसे कि उनसे उम्मीद की जाती है इन संस्थाओं को बचाने में। कई बार तो संस्थाओं के प्रमुखों की भूमिकाएं नकारात्मक तरीके से दिखाई पड़ती हैं। हालांकि यह लोकतंत्र दोस्तों जो क्षरित हो रहा है, हुआ है, यह तब से ही यह प्रक्रिया चल रही है जब से कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र लागू हुआ है, और आज भी यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। लेकिन एक बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर यह है कि 20 सालों का समय छोड़ दिया जाए, 20 सालों से पहले चला जाए या 30 सालों से समय पहले चला जाए, तो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने का काम, संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने का काम सरकार की एजेंसियां करती रही। मसलन पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां इस तरह का काम करती रही हैं, और जनता में और प्रेस में इस बात की मुखालफत होती रही है कि सरकार की एजेंसियों ने संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है। हमारे समय में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अब यह काम सिर्फ सरकार की एजेंसियों पर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा भीड़ तंत्र तैयार हो गया है जो यह सब काम एजेंसियों की तुलना में कहीं ज्यादा कर रहा है, कहीं ज्यादा तेजी से कर रहा है। अब कहे जाने की जरूरत नहीं है कि यह भीड़ तंत्र अपना काम भी कर लेता है और सरकारें या जवाबदेह एजेंसियां अपनी सुविधा के अनुसार बच भी सकती हैं और उससे अपने आप को बचा भी सकती हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे कि न्याय के लिए जो संविधान हमारा हमको हक देता है कि बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के गुजरे किसी भी तरह का कोई दंड, कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, आज ये सब चीजें जैसे मजाक का विषय हो गई। अदालतों के द्वारा अब अपराध और अपराधियों के फैसले नहीं हो रहे, वो सब अब भीड़तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। अब कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, ये सब सारे फैसले भारत के कानून नहीं, भारत में बहुसंख्यकवादी भीड़ और बहुसंख्यकवाद की वकालत करने वाली ताकतें कर रही, जिसमें अदालतों की, संविधान की, कानून की कोई भूमिका नहीं रह गई। सवाल ये है कि जब ये सब चीजें हो रही हैं तो इसमें प्रेस की भूमिका क्या है? आज की तारीख में इस तरह का जो भीड़ तंत्र तैयार हुआ है, जिसको संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने मिलकर के तैयार किया है, जिसमें धर्म का और पूंजीवाद का एक गठजोड़ शामिल है, उन सब ताकतों ने प्रेस की मदद से किया है। और प्रेस कहने का मतलब ये है कि ठीक कह रहे थे, अभी चले गए हैं प्रोफेसर धुलिया, कि आप किस प्रेस की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में एक वैकल्पिक प्रेस भी मौजूद है, वैकल्पिक मीडिया भी मौजूद है, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस मीडिया की सबसे ज्यादा पहुंच है, उन लोगों तक पहुंच है जो भारत की सामान्य जनता है, भारत के आम लोग हैं, और जिनके मन में आज भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रेस की भूमिका रही है, यहां तक कि स्वतंत्रता के बाद में आपातकाल तक जो प्रेस की भूमिका रही है, उन कामों की वजह से प्रेस के प्रति एक सम्मान है। ऐसे लोगों तक जिस मीडिया की पहुंच है वो भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, भारत का प्रिंट मीडिया है, जो पूंजीवादी घरानों द्वारा संचालित होता है, जिसे हम लोग मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। तो यह मीडिया ऐसे भीड़ तंत्र को तैयार करने में, भीड़ तंत्र की संविधान विरोधी गतिविधियों को जस्टिफाई करने में और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतों के पक्ष में एक बुलडोजर चला करके, जनता के मस्तिष्क पर बुलडोजर चला करके इन संविधान विरोधी ताकतों के एजेंडे को लागू करने में इस मुख्य धारा की मीडिया की भूमिका बहुत ऐतिहासिक भूमिका है, जिससे किसी भी आदमी को जिसने प्रेस को तैयार होते हुए देखा है या प्रेस की भूमिकाओं को देखा है, उसे दुखी होगा। अब दोस्तों,
सवाल ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब दोनों हमारे विद्वानों ने, प्रोफेसर धूलिया और प्रोफेसर रसूल, दोनों लोगों ने इस पर बात की कि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। क्या प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब पत्रकारों की स्वतंत्रता है या जो प्रेस को ओन करता है उसकी स्वतंत्रता है? मैं इसका विद्यार्थी नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन मैं एक मीडिया से बाहर का व्यक्ति होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि वो सारी चीजें जो प्रो पीपल हो सकती है, लोकतंत्र में प्रो पीपल से ज्यादा महत्व किस बात का हो सकता है? प्रो पीपल हो सकती है चीजों की बिना सरकारों के खिलाफ या सरकारों के पक्ष की बाइनरी में गए बगैर हमारा संविधान क्या कहता है उसके साथ चीजों को एनालाइज करने की स्वतंत्रता ही मैं समझता हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता का आज की तारीख में मतलब, और लोकतंत्र उसके केंद्र में है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर भानावत ने इस बात को कहा कि हम 150वें नंबर पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। सर, आज ही मैंने ये रिपोर्ट देखी है, शायद आज वापस 2023 की भी आई है, और उसमें हम 11 पायदान और खिसक गए हैं। अब 150 से हम 161 पर पहुंचे। ये चीज हमारी प्रेस की स्वतंत्रता पर एक सबसे ताकतवर टिप्पणी है। हम अपनी बात एक ऐतिहासिक, दोस्तों, जब भारत में स्वतंत्रता आई और भारत के नागरिकों को हमारे हुक्मरानों ने, हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी से मिल करके शासन सत्ता चलाने वालों ने एक वायदा किया कि शासन संविधान से चलेगा, और संविधान कुछ चीजों का वायदा करता है कि व्यवस्था कोई भी हो, दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, जिनसे नहीं किया जा सकता। तो लिखित रूप में आज भी वो संविधान नहीं बदला गया है। कितनी प्यारी सुंदर बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बदल गया है। हमारा संविधान कहता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं, हम अपने शासन से सवाल कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों से असहमत हो सकते हैं इस बात की चिंता के बगैर कि ऐसा करते हुए हम कोई देशद्रोही काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों में ये देखा गया है, पिछले 12-15 सालों में ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है कि जो सवाल करता है वो सबसे बड़ा अपराधी साबित हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। पत्रकार है, मीडिया संस्थान है, मीडिया कर्मी है, वे सब हत्या या शारीरिक हिंसा या ट्रोल या इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं कि वे अपना काम नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि यह जो फासिस्ट स्वभाव है या जो फांसीवादी ताकतें हैं, इन ताकतों ने सबसे पहला और सबसे ताकतवर जो हमला किया है वह संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किया है। 2-3 उदाहरणों से मैं अपनी बात आपसे साझा करूंगा और भी करूंगा कि आप सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की जो एजेंसीज हैं उनकी सलाह पर भारत की सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। और मिड डे मील योजना की हर जगह पर, हर एक राज्य में एक इलाके के हिसाब से एक तयशुदा उसका शेड्यूल है और उसका एक खाना है कि इस दिन ये खाना मिलेगा, उस दिन ये खाना मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में एक पत्रकार पवन जायसवाल, जब वो एक स्कूल पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ खिचड़ी देने के बजाय या रोटी, सब्जी, चावल, दाल देने के बजाय वहाँ के बच्चों को नमक और चपाती दी जा रही, नमक और रोटी दी जा रही है, इस बाबत जब उन्होंने वीडियो बनाया और इस बाबत एक खबर की तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके ऊपर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोप लगाया वो आरोप था सरकार को बदनाम करना। तो आप ये देखेंगे कि जो वायदा सरकार खुद कर रही है, जो देने का वायदा कर रही है लोगों को उपलब्ध कराने का, उसी के बारे में बात करने पर भी पत्रकारों के साथ
राज्य सरकार को बदनाम करने का वो लग जाता है। और अभी इसी साल की मुरादाबाद की घटना है। संजय राणा नाम के पत्रकार ने जब मुरादाबाद की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से उन्हीं के द्वारा किए गए वायदों पर, जो विकास से संबंधित वायदे थे, जब उनसे सवाल किया कि उन वायदों का क्या हुआ, वे वायदे अभी तक उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं हो पाया है, तो इनका जवाब देने के बजाय उस पत्रकार पर एफआईआर कर दिया गया। और एफआईआर में जो केंद्रीय पहलू है जांच करने का, वह केंद्रीय पहलू है कि वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, इंटेंशनल इंसर्ट विद इंटेंस टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग की आशंका, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सवाल यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी सरकार के मंत्री के द्वारा किए गए वायदों के बारे में सवाल पूछने पर शांति कैसे भंग होती? हाँ, ये माना जा सकता है शांति भंग होती होगी उन लोगों की जो इन चीजों के जरिए अपनी शासन सत्ता तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। और जब ये काम मीडिया करता है तो उन्हें उनकी शांति में भंग होता है और ये शांति भंग का आरोप का केस लग जाता है। इसी तरीके से जुबैर का जो केस है, आप जानते हैं कि लोकतंत्र के बनाए रखने में सबसे जरूरी चीज है सही सूचनाओं का पहुंचना, और ये गलत सूचनाएं अगर पहुंचती हैं तो वो लोकतंत्र के लिए ही नहीं, देश की हर एक व्यवस्था के लिए वो कितना घातक है। कोई भी देश गलत सूचनाओं के आधार पर युद्ध में जा सकता है, अपनी समूची उपलब्धि को खो सकता है। तो ऐसा एक जरूरी काम करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज, जो कि फैक्ट चेकिंग का काम करती है, मोहम्मद जुबैर वही तो काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारों को यह फैक्ट चेकिंग, जो सच को सच और झूठ को झूठ सामने ले आने वाले काम से क्या आपत्ति हो सकती है कि मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सरकारों ने हमारे अरेस्ट कर लिया। बाद में हमारी न्यायपालिका ने, जो अभी भी इस बात में उसकी उम्मीद की किरण के रूप में बची हुई है कि अनेक जगहों पर वो सार्थक हस्तक्षेप से उसने लोकतंत्र और न्याय और संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बचाए रखा है, उन्होंने किया। तो इस बात का कोई जवाब क्या हो सकता है, मैं नहीं समझ सकता हूं सरकारों की तरफ से और ऐसी संविधान विरोधी ताकतों की वजह से कि सच की जांच करने वाले, झूठ का पर्दाफाश करने वाले एक पत्रकार से क्या आपत्ति हो सकती है। बहुत मासूम सा सवाल। या अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, तो ठीक 1 महीना सवा महीना पहले मार्च में कश्मीर में इरफान मेहराब नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इरफान मेहराब को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवाद विरोधी कानून के लिए किया गया है, जो वहां एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह काम करते हैं। और उनके जिन रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया है, उनमें से जो रिपोर्ट्स, कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, उनका केंद्रीय मसला ये है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट की। उन्होंने हेरोइन एडिक्शन पर रिपोर्ट की और कश्मीर में हिंदुओं की दुर्दशा पर रिपोर्ट की। ये सब जो सवाल है, ये सवाल जिनके आधार पर उनको आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये सवाल किस तरीके से गैर कानूनी, गैर जायज, संविधान विरोधी है। लेकिन हमारी सरकारों ने इन सब चीजों को बनाने, एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, मैं उन सबको गिनाने बैठूंगा तो घंटों और घंटों लग जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि वे सारी चीजें जिन्हें होना चाहिए, वे सब नहीं होने देने के सरकार पक्ष में है, और जिन्हें नहीं होना चाहिए, जो संविधान विरोधी हैं, जो लोकतंत्र विरोधी हैं, जो न्याय विरोधी हैं, उन सब चीजों पर सरकारों ने मौन सहमति साध करके उसे बढ़ावा दिया है। और कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार के इस एजेंडे में मुख्य धारा का जो मीडिया है वह बढ़ चढ़ के इस तरीके से हिस्सा लेता है जैसे लगता है कि वह किसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रवक्ता से भी ज्यादा सांप्रदायिक भूमिकाएं अदा कर लेना चाहता है। तो सवाल एक और है दोस्तों, इस दौर में हम देखेंगे कि वे लोग जो अपराधी हैं, वे लोग जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त
बलात्कारी हैं, वे लोग जिनके ऊपर बहुत सारे संविधान विरोधी आरोप लगे हैं, ऐसा क्यों है कि जब उनका मामला सामने आता है तो जनता का एक बड़ा हिस्सा समझता है कि नहीं, ये तो छूट जाएंगे, और जो बेदाग है, जो ईमानदार है, जो संविधान के पक्ष में है, जो बहुत सारी मॉब लिंचिंग और ट्रोलिंग को झेल करके अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, उससे लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। लोग मानते हैं कि इसे तो सजा मिल ही जाएगी। यह जो हमारे समय का कॉमन सेंस है, मीडिया की करतूतों से, मेन स्ट्रीम की मीडिया की करतूतों से जो बना है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र और हमारे देश की जनता और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं कि आज का समय, तो मुझे कोट करने की इजाजत दीजिए एक ऐसी कविता जो 30 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी वो वैसे ही प्रासंगिक है जैसे लगता है कि वो 2023 में लिखी गई कविता है। कविता का शीर्षक है मारे जाएंगे, और ये कविता है राजेश जोशी की। कोट, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। अनकोट। तो दोस्तों, राजेश जोशी की ये कविता मैं समझता हूं कि हमारे समय में पूंजीवादी सांप्रदायिक गठजोड़ से बनी ताकतों और उनकी प्रतिनिधि सरकारों की मंशा को ज्यादा स्पष्ट तरीके से, ज्यादा ठीक तरीके से व्यक्त करती है, और यह सब हमारी चिंता का विषय है। यह अब किसी से छिपा नहीं है कि वे सवाल जो सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं, वे सवाल प्राइम टाइम की डिबेट का हिस्सा नहीं है। दावा तो ये किया जाता है कि मीडिया चैनल्स के द्वारा कि जो जनता को चाहिए, जो जनता के पक्ष में, वही दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एजेंडा सेट किया जाता है, हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा। तो अब सवाल इससे आगे का बढ़ गया है। अब फांसीवाद के आने की आहट नहीं है दोस्तों, फांसीवाद आ चुका है। अब जो वैकल्पिक मीडिया है, जो ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब पर चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहा है, वो अभी तक हमारी पहुंच में है, लेकिन अभी अभी कुछ महीने पहले ये खबर आई है कि उसे भी नियंत्रित करने के लिए आईटी एक्ट में कुछ संशोधन किए जाने की जरूरत महसूस कर रही है सरकार, और उसके संशोधन के बाद किसी भी खबर को किसी भी बहाने से उसे लोगों के परिदृश्य से गायब किया जा सकता है, और फिर दो ही चीज बचेगी, या तो आप सरकारों के साथ हैं या सरकारों के खिलाफ हैं, और कहने की जरूरत नहीं है। इस अप्रोच ने दुनिया में जितना खून खराबा किया है, लोगों की हत्याएं की हैं, सभ्यताओं को विनष्ट किया है, उतना किसी और ने नहीं, इस फांसीवादी दृष्टिकोण ने। तो अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। फिलहाल मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, मेरा समय हो गया है। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विशाल विक्रम जी। आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ सूक्ष्म विश्लेषण किया सारे परिदृश्य का, कि किस तरह से इस सदी के प्रारंभ से सांप्रदायिकता और पूंजीवादी ताकतों ने हाथ मिला लिया, किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है, और किस तरह से फासिस्टवादी ताकतें अब सिर उठाने लगी हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया कि किस तरह से जिन संस्थाओं पर जवाबदेही थी, जिन व्यक्तियों पर जवाबदेही थी, उन्होंने किस तरह से उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया, किस तरह से हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती मिलने लगी है, और संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था का किस तरह से क्षरण होने लगा है।
आपने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस पूरे परिवेश को विश्लेषित किया। हो सकता है हमारे साथ जो मित्र जुड़े हैं उनके मन में भी सवाल उठे, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि उस जो नवीनतम रिपोर्ट है, क्योंकि वो प्रतिवर्ष जारी होती है आज ही के दिन, और संयोग से वो विस्मृति हो गई, मैं नहीं देख पाया। और आपके इस वक्तव्य के दौरान जब मैंने उसको देखा तो लेकिन थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ उस रिपोर्ट पे कि जो 161 जो आपने बताया, और मैंने भी अभी देखा कि वो रिपोर्ट है, और देश में उस रिपोर्ट ने कोट किया है कि 1 लाख के आसपास समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, 380 न्यूज चैनल्स हैं, उसमें हमारे देश की ये स्थिति है। और चीन, मैक्सिको, ईरान और कुछ ये जो कंट्रीज हैं, यमन, ये लोग हमारे से पीछे हैं। तो हमारी स्थिति वास्तव में बहुत विकट है। और नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, ये 3 टॉप 3 पर हैं, और वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया ये अंतिम 3 पर हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान है वो हमारे से बेटर है, 152 पोजीशन पर है। भूटान 90 पर है, श्रीलंका 135 पे है। तो ये देश भी हमारे से आगे हैं, मतलब वहां पत्रकारिता की स्थिति हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान में यदि बेहतर है तो कुछ संदेह होता है कि किस तरह से इन्होंने ये सर्वे किया होगा। रूस 164 पोजीशन पे है। 31 देशों को उन्होंने बहुत सीरियस माना है, बहुत गंभीर, 42 को डिफिकल्ट, अति कठिन, 65 को प्रॉब्लमेटिक, और 52 को इन्होंने संतोषप्रद कंट्रीज को माना है। तो ये स्थिति है। चलिए, इन पर विचार बहस चलती रहेगी। लेकिन मैं अभी कुछ क्षण पहले देखा कि हमारी इस पार्टिसिपेंट्स की सूची में 2 प्रबुद्ध विद्वान और हैं जो आईएमसी में जुड़े हुए हैं और वहां से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। प्रोफेसर हेमंत जोशी, जो स्वयं भी पत्रकारिता से जुड़े रहे और बहुत साहित्यिक माहौल में पले बढ़े, वो हमारे साथ हैं। हमारे कई वेबिनार्स में वो श्रोता के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में भी जुड़े हैं। और प्रोफेसर मलाल चटर्जी, जो आईएमसी ढेंकानाल उड़ीसा में है, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आईएमसी ढेंकानाल के साथ तो हमने कई वेबिनार साथ में भी की है। मृणाल जी हमारे बहुत पुराने उसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विचार संक्षेप में इस अवसर पे रखें। मृणाल जी का वीडियो ऑन हो गया है, और हेमंत जी भी यदि मुझे सुन रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है। हाँ, हेमंत जी भी दिख गए हैं, वो भी अपना वीडियो ऑन करें। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी अपनी कुछ टिप्पणियां इस अवसर पर रखें, और उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट से जो भी सवाल पूछना चाहें, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, वो आमंत्रित हैं। पहले मैं प्रोफेसर हेमंत जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस अवसर पर कुछ कहना चाहें तो सादर आमंत्रित है। प्रोफेसर हेमंत जी। मैं एक क्षमा चाहूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, बिकॉज आई एम स्टिल इन द ऑफिस एंड आई हैव 40 मिनट्स ड्राइव टू मीट सम पर्सन। ओके, ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं फिर वीडियो भेज दूंगा, तो आपकी जो भी टिप्पणियां और मृणाल चटर्जी को देख के बड़ी खुशी हुई, और इनको सुनने का मन भी करता है एज यूजुअल, लेकिन मेरी थोड़ी अपनी मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। और हेमंत जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इट इज प्लेजर सीइंग बोथ ऑफ दीज। I mean, I take inspiration from them. They are the ones who have contributed practically in the field also, and they have still, the vibrant thoughts, and they are contributing. But I have some limitations I have to leave. So thank you very much. Thank you. आप गाड़ी में भी ड्राइव कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं डिस्कशंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश करूंगा ज्वाइन करने की, यहाँ थोड़ा जी नेटवर्क सर, जी थैंक सर। यू। हाँ, हेमंत जोशी जी सर। जी सर, धन्यवाद आपका। सर कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। जोशी जी, कुछ नेटवर्क इशू है साहब, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप तक। हाँ सर, नहीं, आपकी ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है आपके एंड पे। चलिए, जब तक फिर मृणाल जी आप कुछ बात कहें, जब तक जोशी जी का नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब तक मैं प्रोफेसर मृणाल जी से अनुरोध करूंगा। जैसा मैंने बताया, मृणाल जी आईएमसी ढेंकानाल का जो सेंटर है उसके रीजनल डायरेक्टर हैं, और कई टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, और आपके कई उपन्यास प्रकाशित हो गए। प्रकाशित में कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुए हैं, और रिसेंटली अभी जो आपका उपन्यास है शायद अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है मृणाल जी, है ना, यदि मुझे सही याद है तो मृणाल जी तो हम और कई उसमें गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। जयपुर आप कई बार आए। तो मृणाल जी अपनी बात रखें, उसके बाद हेमंत जी से पुनः अनुरोध करेंगे यदि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती। जी मृणाल जी। I was listening to the deliberations,
There are some fundamental issues which I think have been touched upon also. When we talk about freedom, whose freedom? किसका स्वाधीनता, किसका freedom? ये एक fundamental issue है. But factoring that issue also, the condition of press freedom all over the world, including our own country, probably is not at a good state. I'll leave that probably part also. It's not at a good state. I'm not going into this listing thing because there are several factors into that. So I'm not very comfortable, and I do not kind of find it very credible. I mean, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये 11 नंबर नीचे आ गया है. तो ये जो है, ये स्टैटिस्टिक्स की उनकी जो पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो बहुत सारी सवाल आ जाते हैं. लेकिन मुद्दा बात तो ये है, ये सारी जो रैंकिंग्स हैं, ये एक चीज को तो रेखांकित करते ही हैं कि प्रेस फ्रीडम की बात जब आती है तो प्रोबेबली वी आर नॉट एट अ गुड स्टेट. नाउ व्हाई? दैट व्हाई पार्ट आई थिंक शाहिद रसूल जी has clarified very lucidly, followed by उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह से इस लोगों को बताया. अब मैं जिस बात पे 2 मिनट अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा कि what next, what needs to be done. We have a vibrant judiciary. They are doing their part. We have a civil society, and civil society has undertaken a very proactive role during freedom struggle. तो क्या हमारा सिविल सोसाइटी इन प्रेस फ्रीडम के लिए उतना चिंतित है? ये एक मुद्दा मैं रखना चाहूंगा. और इस बार में all of us who are members of civil society, we must reflect and introspect. Are we doing our own bit? Are we raising our voice in favor of media freedom? Media bashing to a very large extent, justifiably so. But if we continue to do media bashing, then probably we are losing one weapon which can be protector of democracy, which can be protector of human rights, which can be our protector. If we continue to do that the way we have been doing for the last, say, 20 years or 30 years, 90s के बाद ही जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से धीरे धीरे मीडिया की कॉर्पोरेटाइजेशन भी शुरू हो गया है और उसके साथ साथ मीडिया बैसिंग भी शुरू हो गई है, जिसकी स्केल एंड साउंड कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो probably we need to look at that, and we probably have to look at the alternative media, the same voices, and probably patronize them. They are looking forward for some patronization by right-thinking people, by civil society groups. If we do our bit, I guess we can ensure that media operates at a place where they can do something. यही इसी के साथ ही मैं यही मुद्दा सामने रखना चाहता हूँ और हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे सबकी नजर लेना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मृणाल चटर्जी. जोशी जी, आप कुछ कहेंगे? मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर आज आपके उधर. नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही. हाँ अभी हाँ सर जी, अभी नहीं अब आ रही है. अब आ रही है. अच्छा, हाँ, अब हाँ, आ रही है आवाज. जी. हाँ, अच्छा. नहीं, अभी आज तो बहुत अच्छा जो वक्तव्य मैं सुना विशाल विक्रम जी से, उसके बाद मुझे कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने क्योंकि मुझे आमंत्रण दे दिया है
तो एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक तो असली में देखिए बाकी सब चीजें तो कही गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि मीडिया की स्वतंत्रता की जब हम चर्चा कर रहे हैं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसकी कर रहे हैं। आज के समय में जो विक्रम जी ने बताया वो तो बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए, लेकिन मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग की एक जिम्मेदारी रही है हमेशा से समाज में, क्योंकि वो न तो ऊपर है न नीचे है, तो बीच में होने की वजह से उसका एक ऐसा रवैया होता है कि वो चीजों को अच्छी तरह से रख सकता है। लेकिन आज का जो मध्य वर्ग है वो सुविधाभोगी हो चुका है, और सुविधाभोगी होने के साथ साथ उसमें प्रतिबद्धता की कमी है। तो अगर आप आज जो पत्रकार हैं जो मध्य वर्ग से ही आते हैं ज्यादातर, उनको अगर आप देखें तो वो उन्होंने अपनी करवटें बदल ली हैं, उनकी कोई वैचारिक स्थिति स्पष्ट है ही नहीं। तो जैसी सत्ता आएगी उस हिसाब से अगर वो अपनी करवटें बदलेंगे तो उनको तो हमेशा स्वतंत्रता है ना, वो तो हमेशा स्वतंत्र हैं क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जो बुद्धिजीवी या जो पत्रकार या जो पत्रकारिता का संस्थान मालिक सहित, अगर वो जैसे गोयनका एक जमाने में अपनी भूमिका निभाते थे, इस तरह के मालिक भी अगर हैं, अगर वो सत्ता के विपरीत बोलेंगे, या यूं कहें कि आजकल तो जो है सत्ता राजनेतृत्व कम चलाता है, माफिया ज्यादा चलाते हैं। तो माफियाओं के खिलाफ जहां भी बोला जाएगा वहां पर हत्याएं होंगी। जैसे पत्रकारों की बहुत इस तरह के घटनाएं हैं जहां पर उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ बोला तो हत्या कर दी गई, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। तो अगर नीचे के माफिया से लेके ऊपर तक ऐसा एक माफिया बन जाता है जिसमें मीडिया भी लगभग एक माफिया की भूमिका में आ जाता है, तो उसमें जो काम करने के लिए तैयार है उसको तो स्वतंत्रता है, और जो काम अपने हिसाब से करना चाहता है, अपने विचारों के हिसाब से जन पक्षधर होकर काम करना चाहता है, उसके लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये इसी वजह से हम जो है धरातल में 161 पर पहुंचे हैं और नीचे चले जाएंगे। अगर हम ये महसूस नहीं करेंगे कि ये सवाल इसका नहीं है कि वो एक संस्थान है प्रेस जिसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, या उसमें काम करने वाले लोगों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जब तक जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ, जो कि आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक हो, मैं यहाँ फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आवश्यक नहीं कि वो राजनीतिक हो, अगर पत्रकारिता की जो पक्षधरता है उसके साथ प्रतिबद्धता अगर आपकी है, पत्रकार का जो काम है, पत्रकारिता का जो काम है, उसके प्रति अगर आप प्रतिबद्ध नहीं है तो आपके ऊपर संकट है, अन्यथा कोई संकट नहीं है। ये स्थिति आज को मैं देखता हूँ। बाकी जैसे अभी मनाल जी कह रहे थे बैशिंग का सवाल नहीं, आज तो बैशिंग कर करके भी हम परेशान हो चुके हैं। अब बैशिंग करने का मामला ही नहीं है, अब तो क्या बैशिंग करेंगे आप, वो तो सुबह से शाम तक बैशिंग करते रहिए तब भी पूरा नहीं होगा। तो मीडिया बैशिंग का जो शब्द है वो भी बहुत गलत है। मीडिया बैशिंग का शब्द इसलिए लाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको मालूम था कि भविष्य में हम ऐसी हरकतें करेंगे जिस पे हमारी और आलोचना होगी, तो उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही एक शब्द ले आए, मीडिया बैशिंग। मीडिया बैशिंग क्या होती है? मैं जो सुनता हूं मैं उसकी आलोचना करता हूं तो बैशिंग थोड़ी है। अगर वो विचार लोक संगत नहीं है, जनता के पक्ष में नहीं है, तो मैं उनकी आलोचना करूंगा। अगर आलोचना करूंगा तो बैशिंग थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो केवल आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आप अपना धर्म निभाइए। जैसे किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए, उसी तरह पत्रकारिता का भी एक धर्म है, उसको जो निभाएगा, अगर वो ईमानदारी से निभाएगा तो वो शायद आज के समय में सही पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ आज तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सार्थक टिप्पणी के लिए। मैं सूची में देख रहा हूँ डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक हिसार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाह। जो वहाँ का मीडिया, जो यूनिवर्सिटी का सोशल मीडिया है वो संभाल रही हैं, और आज उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के वो जो ग्रुप है उस पर भी इसको शेयर किया था। तो प्रज्ञा जी, आप कुछ कहना चाहें तो। हेलो, गुड इवनिंग और नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, ये बहुत अच्छा मैंने अभी शुरू से एंड तक सुना है।
और जो पेज पे शेयर किया था उससे मुझे लगता है बहुत से लोगों ने इसे ज्वाइन भी किया। और आज के सेशन के लिए तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ इसके लिए जितनी भी हमारी जो समस्याएं हैं और उसमें जो मीडिया लिटरेसी का जो पार्ट है, लोगों को जागरूक करने का है, जो अवेयरनेस है, वो भी कुछ हद तक आज काम कर रहा है। और मेरा भी काम उसी पे है, मीडिया लिटरेसी और फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि मैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ ये कंडक्ट कर रही हूँ, नॉट ओनली एज अ फैक्टशाला मीडिया लिटरेसी में ट्रेनर, बट एज अ डिजिटल सेफ्टी मेंटर ऑफ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, और वो स्पेसिफिकली स्कूल चिल्ड्रन को अवेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समस्याएं इस तरह की स्कूल से अगर हम बच्चों को अवेयर करते हैं और फिर वो कॉलेज लेवल पर आते हैं तो बहुत हद तक उसको समझते हैं। और आज प्रेस डे पे जो सर कम्युनिकेशन टुडे ने ये सेशन रखा है और जो स्पीकर्स हमारे आए हैं वो वाकई बहुत एनलाइटनिंग रहा। और स्पेसिफिकली विशाल विक्रम का जो मैंने अभी सुना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सार्थक रहा। ये सभी स्पीकर्स के को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और प्रेस डे के लिए सभी मीडिया प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस को भी बधाई, जो आज ये इस तरह के जो डिस्कशंस और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इनवाइट करने के लिए भी सर थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। कोई हमारे और मित्र कुछ कहना चाहें? जी नमस्ते, जयवीर सिंह बोल रहा हूँ सर, पुणे से। सर मेरा विशाल सर से एक सवाल है। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के एक दो उदाहरण दिए, ये वास्तव में है, लेकिन मैं जो दो दृष्टि से इसको देखता हूँ। एक स्वतंत्र पत्रकारिता है और एक अस्वतंत्र है। स्वतंत्र पत्रकारिता कौन सी है? जो सरकार या पुलिस के अधीन होकर पत्रकारिता करते हैं। वैसे पत्रकार एक बुद्धिजीवी होता है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में दो तरह के पत्रकार है। एक जो सरकार के अधीन होके पत्रकारिता करता है, और जो अस्वतंत्र पत्रकार है वो नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने कई उदाहरण देखे उत्तर प्रदेश के कि पुलिस खुद मीडिया को बुला के एक एग्जाम्पल दे रही है कि एक घटना का जिक्र कर रही है कि उसमें 15-20 लोग व्यक्ति बैठे थे और उनका आपसे समझौता चला था, तो उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। सिर्फ वहां पर मरने वाला और 6 पकड़ने वाले, बाकी लोग नहीं रहते, उतनी ही मीडिया में आती है। जब उन 5 व्यक्तियों के घर वालों की सभी औरतें और जो पड़ोस में से रात में हल्ला सुन के आ जाती है कि क्या हुआ पड़ोसी का, पुलिस उनको भी ले जाती है। लेकिन कोई भी पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार तो है, जब हम बात करते हैं कि भाई ये न्यूज़ है, बोला नहीं यार हमें जीना है। ये सवाल आज समाज में उठने लगा। क्या विशाल सर ये सही कह रहा हूं मैं? सवाल आपका मैं साफ साफ समझ नहीं पाया, तो उसको एक दो वाक्यों में कहिए तो। सवाल है कि दो तरह की पत्रकारिता मैं देखता हूँ। एक जो सरकार के अधीन पत्रकारिता करते हैं, सरकार के अधीन ही बात रखते हैं, और एक जो अस्वतंत्र, जिसे मैं कहता हूँ कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छी बातों को नहीं ला पाता, सिर्फ सरकार की तरफ से ही पत्रकारिता की जो बातें आ जाती है। जैसे एक घटना घटती है, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और 5 व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं। जो 5 व्यक्ति होते हैं उनके घर की सभी औरतों को उठा लिया जाता है रातों रात, और जो हल्ला सुन के पड़ोस की महिला आ जाती है कि मेरे पड़ोस में क्या हल्ला हो रहा है, उसको भी पुलिस ले जाती है। उनकी कहीं भी खबर कोई भी पत्रकार नहीं आता। तो पत्रकार जब बात करते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हमें जीना है, मतलब वहाँ का जो लोकल पत्रकार है वो कहता है यार हमें भी बच्चे जयवीर जी, पालने हैं। सवाल क्या पूछ रहे हो आप? वो घटनाएं तो ठीक है कि वो होता है और नहीं होता है, क्योंकि सरकार के तो कोई पत्रकार होते नहीं है, हाँ जी, है ना? सरकार तो कोई तो मैं अखबार ये कह रहा निकाल हूँ नहीं रही है। कि हाँ जी, हाँ। नहीं मेरा सवाल ये है सर कि जो सच्चे पत्रकार थे वो पीछे हट जाते हैं ऐसी घटनाओं से, वो पटल पर नहीं ला पाते ऐसी घटनाएं। क्या ये सत्य है? देखिए, इस बात का सिर्फ पत्रकारिता से संबंध नहीं है। जब मैं पूरी बात कर रहा था तो उसका केंद्रीय मसला ये था कि आप जब संवैधानिक लोकतंत्र, सरकारों को ध्यान में मत रखिएगा कि फला दल की सरकार है या परेशान करती, इस तरह की चीजों। संवैधानिक लोकतंत्र के हिसाब से काम करेंगे तो इस तरह के संकट नहीं होगा। जब ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जाए कि संवैधानिक लोकतंत्र के बजाय सरकार और सरकार की जो एजेंसी है, पुलिस इत्यादि जो कुछ भी है, उसके केंद्रित मामला हो जाता है, तो
पत्रकार भी तो अंततः एक घरबारी मनुष्य है, जिसे अपना घर भी देखना होता है, वो भी देखना होता है। तो यदि चारों तरफ चीजें इतनी ज्यादा हमलावर है उसके ऊपर कि जिसकी वजह से उसका अपना जीवन, परिवार का जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो आप उससे उम्मीद तो कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि वो अपना जीवन खतरे में डाल करके ऐसा करे। लेकिन ये सवाल उसके बजाय मेरा ख्याल है कि सरकारों पर ज्यादा है, क्योंकि किसी भी तरह की, चाहे वो पत्रकार की स्वतंत्रता हो, चाहे वो नागरिकों की स्वतंत्रता हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उसका एक गहरा संबंध सरकार और सरकार की नीतियों और संविधान से। तो जो पत्रकार आज की तारीख में इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद काम खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, वे बिल्कुल सलाम करने के पात्र हैं, उनको सलामी दी जानी चाहिए। लेकिन आप सबसे ऐसी उम्मीद करेंगे तो ऐसा व्यवहारिक दुनिया में संभव नहीं है। हर आदमी उतना जोखिम नहीं ले सकता है, हर आदमी अपनी हत्या को आमंत्रित नहीं कर सकता है। तो पत्रकार भी अंततः, अब वो नौकरी है, नौकरी कर रहे हैं, तो ये सारी डिमांड्स हमको सरकार से करनी चाहिए बनिस्बत पत्रकार के। सरकारें प्रो पीपल हों, सरकारें संविधान में जो वायदे किए हैं हुक्मरानों ने, उन वायदों के हिसाब से काम करें, तो जो आपकी डिमांड है कि वो फिर हर तरह की चीजें सामने आ जाएंगी। बाकी उसके बगैर जब इस तरह की एरोगेंसी हो, इस तरह का डर हो कि आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, आप किसी घटना के बारे में सच बोल दीजिए और आपको पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां परेशान कर देंगी अगर उस तरह के सबूत नहीं पाए गए, तो आपको मॉब लिंचिंग भी एक तरीका है, ट्रोलिंग भी एक तरीका है। इन सब चीजों को झेलने के लिए तो हर आदमी उतना रिस्क नहीं ले सकता, नहीं ले पाता है। लेना चाहिए या नहीं चाहिए एक आदर्श की बात हो सकती है। जो लोग ले रहे हैं वे सब हमारे लोकतंत्र को बचाए रखने का आधार है और उम्मीद है। लेकिन आप ऐसी उम्मीद सबसे नहीं कर सकते, हर एक पत्रकार से नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने ये मिर्जापुर के पवन जायसवाल का जो जिक्र किया, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही किया था, सच ही तो दिखाया था, और सरकार ने उन्हें उठा करके जेल में ठूस दिया। और सवाल तो ये है कि बाकी और सारी एजेंसी जिनकी मदद के लिए नहीं आती, आपका भरोसा कम होता जा रहा है। इसलिए बड़े पर्सपेक्टिव का सवाल है। चलिए, थैंक यू विशाल जी। डॉक्टर किरण संजीव, इन्होंने हैंड रेज किया है, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। अपना परिचय दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए जी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए पहले। नमस्ते संजीव सर। हाँ और जी। यहाँ जितने लोगों ने अभी बोला है वो सबने आप बहुत अपना ही परिचय दीजिए पहले। जी, मैं डॉक्टर किरण मित्तल, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मीडिया की, और 25 साल के आसपास मैंने फील्ड में काम किया है अलग अलग मीडिया सेक्टर में। लेकिन फिलहाल मैं आज कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ आप सबको शुभकामना दे रही हूँ कि अगर आप इस आज का जो हुआ है वेबिनार, इसको यूट्यूब पर रखें और लोग आपको ट्रोल ना करें, तो इसके लिए आप सबको शुभकामना। और आप डरिएगा मत, रखिएगा जरूर, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आज कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत से बोला, विशाल सर और जो हमारे एक और IIMC के सर ने बोला था, उन्होंने बहुत हिम्मत से कुछ एक दो बातें ऐसी कर दी हैं कि मुझे लगा कि बड़ी हिम्मत चाहिए आप आजकल इस तरह की बात करने के लिए। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अपने पेज पर या व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ लिखे, फिर उसको लिखते लिखते डिलीट कर देते हैं। तो इसको किरण जी, ये वार्निंग है या थ्रेटनिंग है? ये आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने अगर ये काम किया है तो बहुत बहादुरी का किया है, सैल्यूट देने लायक। और ये वर्डप्रेस डे के लिए एक आप लोगों का डेडिकेशन है, या उसको एक सेलिब्रेशन करने का तरीका है कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई। चलिए, धन्यवाद किरण जी। वो किरण संजीव नाम से मैं कंफ्यूज हो गया था, बाकी किरण जी तो हमारे पिछले वेबिनार में एक्सपर्ट के रूप में सम्मिलित हुई थी जी। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस चेतावनी के लिए। जी जी जी, तैयार रही है। जी जी जी, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत का काम है। आज कुछ भी बोलना, समझते हैं कि ये सब हो सकता है, इसमें कोई और सबने बहुत अच्छा बोला, और जो एक्चुअली बोला है उससे भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, तो देखिए, वो चेतावनी आपके लिए भी है, गुजरात में रह करके आपने साहस किया। जी 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 जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। नहीं, ये सब
अकादमिक विमर्श है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संकट है। मैंने तो अपने सेवा काल में भी विभिन्न विचारधाराओं के जो मित्र थे हमारे, उन सबको एक जी मंच सर। पे बुलाया है और अच्छी बहस हुई है। जी कभी सर। कोई इस तरह के खतरे नहीं आए। तो ये अकादमिक विमर्श है जी और मुझे जी नहीं लगता है कि इसमें किसी को अन्यथा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज के दो पक्ष हैं, तो हम इन्हीं जी वस्तुतः इन चर्चाओं की सार्थकता ही तभी है कि जब द्विपक्षीय हो और विचार खुल करके सामने आए, जी सर तो बिल्कुल उसी में सर। इन विचारों की सार्थकता है। तो मुझे जी लगता है सर। लगभग 2 घंटे का समय हो गया है अपने को। तो कोई और मित्र जी सर। हाँ, 2 से बहुत ज्यादा हो संक्षेप में गए अपनी थे। बात करना चाहे तो आमंत्रित है, नहीं तो अपन धन्यवाद ज्ञापन करके इसका अब समापन करते हैं। पर जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है और फ्रीडम ऑफ डायलॉग भी है। आई थिंक बिल्कुल सभी बिल्कुल को चांस है कि वो बोल होना ही सके। चाहिए, है ना। बिल्कुल। बाकी हमारे साथ ये आशीष रंजन है जो करीब साल भर से शायद जुड़ रहे हैं लगातार। एक वो सोनू हैं, वो भी बिहार से हैं हमारे साथ, जो मुझे बड़ा सहयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेके भेज देते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पे डालने में बड़ा सहयोग रहता है और मुझे यहाँ जूझना नहीं पड़ता है। मुझे डर लगता है कहीं आउट नहीं हो जाऊं इसमें से। जी सर, पत्रकारिता में ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत- ये लगातार मेरे ख्याल साल 1.5 साल से बिल्कुल। हर वेबिनार को रिलीजियसली अटेंड कर रहे हैं। मेरे साथ भी और- कनेक्टेड है। हाँ, और ये दयानंद जी हैं हमारे साथ, हरियाणा से जुड़े हैं और ये भी स्कूल में अध्यापक हैं, लेकिन इनकी भी एक पुस्तक आई है हरियाणा की पत्रकारिता पर। तो मुझे लगता है इस आभासी मंच से मैंने अपना एक बहुत बड़ा एक संसार है उसको जोड़ लिया है इसके माध्यम से। और ये सभी मित्र हैं जो नियमित रूप से इसमें उपस्थित होते हैं, कभी अपनी टिप्पणी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। कम्युनिकेशन टुडे के आगे सर कम्युनिकेशन टुडे वर्ल्ड करना पड़ेगा। अच्छा। नहीं साहब, 26 साल की यात्रा आप सबके सहयोग से ही पूरी हुई है। और अब की बार जो हमारा विशेषांक है, आप तो मीडिया लिटरेसी में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भेजना चाहिए था आपको आर्टिकल। तो ठीक बहुत है सर, जल्दी अब प्रकाशन के उसमें ही हूँ मैं। करीब 40 साल एक मेरे पास आए मीडिया लिटरेसी पे ही। हमारा ये 11वां विशेषांक है अब की बार सर जनवरी अभी से। एक रेफरेंस बुक में एक चैप्टर मेरा आ रहा है, अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। मीडिया लिटरेसी पे ही है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समापन करता हूं और पहले आभार प्रकट करता हूं हमारे तीनों जो आज के एक्सपर्ट्स थे। 2 इंसिडेंटली उनके दूसरे असाइनमेंट्स थे, प्रायोरिटीज थी, तो उधर वो चले गए हैं, प्रोफेसर सुभाष धूलिया और प्रोफेसर शाहिद रसूल जी। नेचुरली जिन जगहों पर वो बैठे हैं उनकी व्यस्तताएं मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक टेलीफोन पर उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी के ही हैं, अधिकार से इनको हम बुला सकते हैं। और अच्छा लगा कि उन्होंने आकर के इतनी साफगोई के साथ अपने विचार हमारे साथ प्रकट किए। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, प्रोफेसर हेमंत जोशी, प्रज्ञा जी और हमारे जो और मित्र हैं, आशीष, सोनू, दयानंद जी, डॉक्टर किरण, संजीव, आज जो इनका नाम पढ़ा मैंने उसी नाम से संबोधित कर रहा हूँ, और जयवीर, ये भी पिछले 3-4 वेबिनार से लगातार हमारे इसमें उपस्थित हो रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं और टिप्पणियों के माध्यम से इसमें सार्थक हस्तक्षेप भी करते हैं। और जैसा मैंने आपसे बताया, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो इसका तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, उनके प्रति भी आभार। सर्टिफिकेट भेजने का सारा काम वो IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। उसके बावजूद भी वो जिस तरह से इसमें जुड़ करके मुझे सहयोग कर रही है। डॉक्टर उषा साहनी जो अंग्रेजी की वहाँ अध्यापन का काम कर रही हैं, वो भी मेरे इस पूरे अभियान के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी मित्रों के, सहयोगियों के सहयोग के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। हमारी अगली वेबिनार 7 मई को है। वो वेबिनार हमने रखी है मन की बात पर। पूरा देश मन की बात पर चर्चा कर रहा है, 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। तो मन की बात ए पॉजिटिव ओशन ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इसमें हमने आमंत्रित किया है जनेंद्र सिंह जी को, जो आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं और मन की बात से, इस प्रोग्राम से 2014 से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे एंकर हैं, प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम उन्होंने एंकर किया है। और जामिया मिलिया इस्लामिया से डॉक्टर सुरेश वर्मा, जो यहाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के ही विभाग में पढ़ा रहे हैं और इसमें शोध अनुसंधान कर रहे हैं। और एक जो इसके लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कोट किया था, गोवा के सागर नायक मुल्ले, जो कीव आर्ट है, मतलब वो किस तरह से लाल मिट्टी पे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही रोचक, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। तो ये 3 मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके पास समय हो, रविवार को सुबह 11:30 बजे। और लिंक वगैरह और बाकी सारी सूचनाएं सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपको सबको भेज दूंगा, जो भी मित्र हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं। और अब तक मैंने पूरा ईमेल का एक डाटा बैंक तैयार किया है, करीब 3000 हमारे पास
पार्टिसिपेंट्स के ईमेल है, इन सबको मैं वीडियोस भेजता हूँ, जिसको जब समय हो देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर अपनी टिप्पणियां करें और शेयर करें मित्रों के साथ, ताकि ये जो वैचारिक यात्रा है ये निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।